Hello student, good morning. Today I will start again thermodynamics and we are studying heat, about the heat, and now today I will see here change in enthalpy at constant volume. You know that at constant volume delta H change in enthalpy is equal to change in internal energy and equal to change in heat supplied. Okay, here you are looking that change in enthalpy is equal to change in internal energy and which is equal to the heat supply at constant volume. Okay, because at constant volume there will be no work done, therefore or you can say work done is zero, therefore delta H will be equal to heat supply. Now we know that PV is equal to nRT from the ideal gas equation, and where n is the number of molecules. Suppose there are two content, one is A, one substance, and other is B substance. Therefore let n be the total number of moles of reactant. Okay, there are A, and A is the total number of moles of reactant, and Nb is the also total number of moles of product. Then for A, PV A is equal to NaRT. Okay, and for B, PVB is equal to NBRT. Combining the both equation, when we will combine or we will see the change delta W is equal to, you know that W is equal to PV, and delta you can say that W is equal to P delta V also. Then on subtracting, what we find here, PV on the place of this PV we will put NaRT, in place of PVB and NBRT. Then we will get NB minus NaRT. Therefore PVB minus VA equal to NB minus NaRT. You can write this P delta V is equal to delta N RT, or you can write W is equal to delta N G RT. This is the relation between work and ideal gas equation. Okay, now we will see here what are extensive property and intensive property. First we will see here extensive property. As name suggests, extensive, those properties which depend upon the quantity or size of the matter. Those quantities which depend upon the size or quantity of the matter. Okay, such as mass, volume, and internal energy. These all depends upon the quantity or size of the matter. And intensive properties are just opposite of this. Those properties whose value doesn't depend upon the quantity or size, that is known as intensive, that is temperature, density, pressure. Now we will see the molar property Xm. Okay, this is denoted by Xm. Is a value of extensive property. It is also a extensive property X of the system of 1 mole of the substance. If n is the amount of matter, then Xm is equal to X upon n. It is independent of the amount of, thus the molar property is independent of the amount of matter. Okay, where X and n both depend upon the amount. Okay, now we will see here heat capacity.
heat capacity. This is the type of capacity. It is measured by the transfer of heat. Transfer of heat. It is measured by transfer of heat. Okay. Now we will see here. We see here measurement of heat capacity is done by the measurement of transfer of heat. How much we can transfer heat, that is the heat capacity. You can say that increase of temperature is proportional to the heat transferred. Okay, Q is equal to Q directly proportional to delta T, change in temperature. Okay, or you can write Q is equal to coefficient delta T, where coefficient is denoted by C and magnitude of coefficient depend upon the size, composition, nature of the system. We can also write this equation Q is equal to C delta T, where C is the coefficient heat capacity. Now you can define that heat capacity is what? At a unit temperature, how much we can supply heat, that is the heat capacity. C, when C is large, amount of heat given out result in very small rise in temperature. C is directly proportional to amount of the substance. Okay, molar heat capacity of a substance Cm is equal to C by N, where heat capacity of 1 mole of substance, here you can see Cm is the heat capacity of the 1 mole of the substance, and is the quantity of heat needed to rise the temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius. Once again, C is the heat capacity. At each rise of 1 degree centigrade, how much heat is supplied, that is known as heat capacity. If C is larger, the amount of heat given out as a result is very small rise of temperature. Means to say that if we increase very little amount of temperature, heat will be in large quantity. Now C is the directly proportional to the amount of substance. Molar heat capacity of substance Cm is equal to C by N, is a heat capacity of 1 mole of substance and is quantity of heat needed to rise the temperature of 1 mole substance by the 1 degree Celsius. तो बच्चों हीट कैपेसिटी क्या है? एक कैपेसिटी मेजर करते हैं हम यहाँ पे कि कितना हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट यहाँ पे, तो हम इसे Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T लिख सकते हैं, और इस कोफिशिएंट या लिख सकते हैं Q कोफिशिएंट डेल्टा T आई हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू C डेल्टा T। मैग्नीट्यूड जो इस कोफिशिएंट का आता है वो डिपेंड करता है साइज पे, कंपोजिशन पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, थोड़े से भी टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो। अब C जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट भी होता है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो एक तरह से हीट कैपेसिटी होती है 1 मोल सब्सटेंस की, जो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मोल सब्सटेंस का बढ़ाने पे मिलती है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है Q इक्वल टू C m डेल्टा T, where small c is the specific heat capacity when m mass is given. It is also equal to C delta T. Now we will see here the relationship between Cp and Cv for an ideal gas. Okay, at constant volume of heat capacity C, at constant volume is denoted by Cv, at constant pressure it is denoted by Cp.
Relationship between them is as follows. We know that at constant volume Q is equal to delta U or Cv delta T. At constant pressure Qp is equal to Cp delta T or delta H. Now we difference between Cp and Cv. We see here. We know that delta H is equal to delta U plus delta PV, or you can write here delta U plus delta RT, or you can write delta U is equal to R delta T. Now you can put here delta H is equal to, in earlier slide we see that delta H is equal to Cp delta T and delta U is equal to Cv delta T plus R delta T. Now we will take common delta T, it will be cancel out here. If you take delta T as a common, that much will be cancelled out by this side. Now it will be equal to Cp is equal to Cv plus R. Now if you bring it this type side, then Cp minus Cv is equal to R. बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं ये फार्मूला कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा ब्रैकेट में पी वी. अब इस पी वी की जगह पे हम आर टी भी लिख सकते हैं, अगर एन मोल होगा तो एन आर टी लिख सकते हैं. अब हम डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल टू हमें मिल गया डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी. अब हम बच्चों जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है सी पी डेल्टा टी, हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में देखा ये, और डेल्टा यू इक्वल टू होता है सी वी डेल्टा टी और आर डेल्टा टी उसी तरह से रहेगा. अब यहाँ से हम डेल्टा टी कॉमन ले लें तो यहाँ से सी वी प्लस आर हो जाएगा और डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा और फिर ये डेल्टा टी इससे कैंसिल हो जाएगा. तो सी पी इक्वल टू क्या बचेगा, सी वी प्लस आर बचेगा. इस v को इस साइड ले आएंगे तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर हो जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, कैलोरीमेट्री. Energy change can be measured with the chemical or physical process by experimental technique that is called calorimetry. Calorimetry क्या है, एक तरह से ये इंस्ट्रूमेंटल या टेक्निकल मेजरमेंट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है एक एक्सपेरिमेंटली हम जो हीट अमाउंट पता करते हैं वो कैलोरीमेट्री होता है. इस प्रोसेस में जो वेसल यूज किया जाता है इसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं. ठीक है. इज इमर्ज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. यहाँ पे हम एक लिक्विड लेते हैं, लिक्विड का ही हमें अगर जैसे निकालना है हीट, तो हीट कैपेसिटी तो हर लिक्विड का पता होता है, इन विच द कैलोरीमीटर इज इमर्ज and the heat capacity of the calorimeter is possible to determine the heat evolved by measuring the temperature change under two condition. कहने का मतलब कि ये कैलोरीमेट्री क्या है, ये एक टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके द्वारा हम हीट चेंज को मेजर कर सकते हैं विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू. इस प्रोसेस में जो वेसल यूज किया जाता है इसको कैलोरीमीटर कहते हैं और एक बड़े वॉल्यूम में वो इमर्ज रहता है. और हीट कैपेसिटी अगर लिक्विड का पता है इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्ज, जिसमें कैलोरीमीटर में डाला है, तो हीट कैपेसिटी उस कैलोरीमीटर से पॉसिबल है डिटरमाइन करने, या कितना हीट इवॉल्व होगा वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम है और एक कांस्टेंट प्रेशर है. तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV है और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, QP है. अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू मेजरमेंट. ओके. फॉर डेल्टा यू मेजरमेंट हीट इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हेंस these measurements are as follows. Here is a steel vessel immersed in water bath
you can see here. Okay, the whole device is called calorimeter. This device is known as calorimeter. Okay, steel vessel is immersed in water bath to ensure that no heat is lost in it. हम इसके अंदर जो है वाटर बाथ के अंदर स्टील का वेसल डाल देते हैं, तो ये पता लगता है कि हीट यहाँ से कोई लॉस नहीं होती है, सराउंडिंग में नहीं जाती है. कंबस्टेबल सब्सटेंस इज बॉन्ड इन प्योर ऑक्सीजन सप्लाइड बाय द स्टील बॉम्ब. अब यहाँ पे स्टील बॉम्ब है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, इस पूरे को स्टील बॉम्ब बोलते हैं. ठीक है. हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू वाटर and around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. Okay, its volume does not change. The energy change associated with the reaction and measure at constant volume. Under these conditions, no work is done. You can see here, no work is done because there is no change in volume. No work is done as reaction is carried out at the constant volume in the bomb calorimeter. Even for the reaction involving gases there is no work done. यहाँ पे भी वर्क डन नहीं होता है. टेम्परेचर चेंज ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू QV by using known heat capacity of the calorimeter. कहने का मतलब ये कैलोरीमीटर के थ्रू जो हम इंटरनल एनर्जी चेंज या हीट एनर्जी चेंज पता करते हैं. तो कैलोरीमीटर एक तरह का एक स्टील का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टील वेसल होता है. इसके अंदर वाटर बाथ पूरा भरा रहता है, इसलिए कि कोई हीट बाहर न जाए, अंदर रहे, सराउंडिंग में न जाए. डबल लेयर का बना होता है और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उसको प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई के थ्रू जो स्टील बॉम्ब के अंदर बर्न करते हैं. ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा स्टील बॉम्ब है. हीट इवॉल्व. अब इस रिएक्शन के दौरान जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो हीट जो इवॉल्व होती है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर के पास और टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रहता है. अब यहाँ पे जो बम कैलोरीमीटर है वो चूँकि सील्ड रहता है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है और एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन आर मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज होगा, डेल्टा यू जो चेंज होगा, उसको हम इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. इन परिस्थितियों में कोई वर्क नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है तो वर्क नहीं होता है. और ऐसा भी है कि इवन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस, जहाँ पे गैस इन्वॉल्व होती है वहाँ पे भी वर्क नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू जो होती है सेम होती है, नो चेंज होती है. ओके. और जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज ऑफ रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड इनटू QV यूजिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर. अब यहाँ से कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसको हम मेजर कर लेते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं डेल्टा H मेजरमेंट. सेम प्रोसेस यहाँ पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. वी कैन मेजर हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इन द कैलोरीमीटर बाय फॉलोइंग टेक्निक. अब इस तरह से हम इसको चाहें तो कैलोरीमीटर के अंदर ही हम हीट चेंज को भी पता कर सकते हैं. हीट हम लोग जानते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू QP होता है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व जो होता है QP होता है. At constant pressure is called heat of reaction or enthalpy of reaction. जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट इवॉल्व होती है, लॉस ऑफ हीट होता है, सराउंडिंग में जाता है, तो उस समय QP जो होता है वो निगेटिव होता है. और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उस कंडीशन में QP जो है पॉजिटिव होता है और डेल्टा H जो रिएक्शन का होता है वो भी पॉजिटिव होता है. इस तरह से हम हीट का मेजरमेंट कर लेते हैं. नेक्स्ट आते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन. रिएक्शन इंथैल्पी, अब यहाँ पे वेरी सिंपल है, अब कोई भी डिफिनेशन बनाना है बस
किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का नाम लिख देना है। इन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो इंथैल्पी चेंज होती है इस रिएक्शन में, उसको हम रिएक्शन इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो कुछ रिएक्शन हुआ ही होगा, तो उसमें जो चेंजेस आए होंगे वो इंथैल्पी चेंजेस जो होंगे उसको रिएक्शन इंथैल्पी कहते हैं। द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिनोटेड बाई डेल्टा आर एच। डेल्टा आर एच इज इक्वल टू सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा ये समेशन एच ए एच माइनस एच बी। अब इसके इसी तरह से अब सारे डिफिनीशन हो जाएंगे। अब कौन सा रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी पहले क्या होती है ये भी जान लेते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है। Enthalpy of a reaction depend upon the condition under which the reaction is carried out. It is therefore necessary that we must specify the standard condition. कहने का मतलब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है बाय सम स्टैंडर्ड कंडीशन। अब इसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एक पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर पे हो रहा है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है, तो उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी बोलेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर भी स्पेसिफाई हो और प्रेशर भी स्पेसिफाई हो। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल है वो 298 केल्विन इज प्योर इथेनॉल एट 1 बार। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 500 इज प्योर आयरन एट 1 बार। तो स्टैंडर्ड स्टेट ये होती है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई हो, तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड होता है। और स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम लोग उसके ऊपर डेल्टा एच अगर लिखा है उसके ऊपर थीटा लगा देंगे या राउंड बना देते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड से करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की इंथैल्पीज होगी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में। ओके, अब जैसे फेज ट्रांसफ़र होता है, फेज ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे वाटर को आइस के रूप में, सॉलिड के रूप में लिए, अब ये हीट इसको दिए, फ्यूज़न हुआ तो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ मेल्टिंग हो गया। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आया वो एक कंपनी इज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे जो फेज ट्रांसफ़र से जो हीट चेंज होती है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वाटर जो है सॉलिड स्टेट में है, अब 6 किलो जूल हीट ऑफ फ्यूज़न इसको मिला तो ये लिक्विड हो गया। तो इंथैल्पी चेंज जो होता है वो मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इसको अगर दिखाना होता है तो डेल्टा फ्यूज़न एच नॉट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर वेपराइजेशन हो रहा है, अब ऐसे ही फ्यूज़न हुआ तो डेल्टा एच फ्यूज़न हो गया, वेपराइजेशन हुआ तो डेल्टा वेपराइजेशन एच हो गया, सब्लिमेशन हुआ तो इस तरह से। तो कह सकते हैं कि द अमाउंट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कितना ही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वेपराइज करने के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे या स्टैंडर्ड प्रेशर पे 1 बार पे, उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, या इसी को मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। इसको हम डेल्टा एच वेपराइजेशन
एच नॉट से शो करते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो सेम डिफिनीशन हो जाएगा, बस वर्ड चेंज हो जाएंगे थोड़े से। चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस सबलाइम्स। सबलाइम में क्या होता है, सीधे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज 1 बार। ओके, तो यहाँ पे सब्लिमेशन ये हो गया, इसको डिनोट करना होगा तो एच सब्लिमेशन एच नॉट हो जाएगा। अब फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी को फॉर्मेशन बोल देंगे। फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जब हम एक मोल सब्सटेंस को स्टेबल स्टेट में लाते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बारे में। ओके, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन जिसमें हम हीट को भी दिखाते हैं, डेल्टा एच कितना चेंज हुआ, उसी को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अब इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। द कोफिशिएंट इज इन ए बैलेंस, यहाँ पे पहले तो कोफिशिएंट सारा बैलेंस होना चाहिए। थर्मोकेमिकल रिएक्शन रेफर द नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, ये बैलेंस होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वैल्यू जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है वो उसका यूनिट जो हो जाएगा किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा कर के हम कोई इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन पे बेस जो न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हेस लॉ। हेस लॉ क्या है? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। Enthalpy is a state function and further therefore the change in enthalpy is independent of path between the initial state and final state. In other words, enthalpy change of a reaction is same whether it occur in one step or arise in the sequence of steps. कहने का मतलब जो होता है कि इंथैल्पी तो हम लोग जानते हैं कि स्टेट फंक्शन होता है। अब जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। वहाँ पे किस तरह से हम फाइनल से इनिशियल से फाइनल में गए इससे मतलब नहीं है, हमें ये जानना है कि इनिशियल पे कितना था, फाइनल स्टेट में कितना था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन के लिए होती है वो सेम होती है। कब? चाहे उसे एक स्टेप में कराएं चाहे सीरीज ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब कि अगर हम एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर एक स्टेप में बनाते हैं, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर हम एक स्टेप में बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए ले लिया ए है, ठीक है, एक मिनट, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि ये ए है, ए से डी बना, ओके, ए से डी बन गया। अब ये एक स्टेप में बन गया। अब यहाँ पे जो डेल्टा आर एच है, मतलब रिएक्शन का जो हीट है, डेल्टा एच इक्वल टू एक किसके बराबर होगा? अब अगर हमें एक तो ये एक स्टेप में हो गया, ठीक है, तो यहाँ ए से बी बना, पहले बी बना,
बी से फिर इधर सी बना, सी से फिर यहाँ पे डी बना। अब हम ये क्या देख रहे हैं, डी बनाने के लिए हम एक स्टेप में भी काम कर रहे हैं और इसको हम 3 स्टेप में भी कर सकते हैं कि पहले ए बनाए, फिर बी बनाए, फिर सी बनाए, फिर डी बनाए। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हीट चेंज जो आता है इस पहले स्टेप में आता है डेल्टा H1 आता है, डेल्टा H1 आता है। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा H2 आता है। और यहाँ पे डेल्टा H3 आता है। अब ये एक स्टेप की जो एनर्जी है उसके कहने का मतलब ये बराबर है किसके, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड प्लस डेल्टा H3। ठीक। तो हेस ने कहा कि अगर हम कोई रिएक्शन एक स्टेप में कराते हैं जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इंथैल्पी चेंज बराबर होती है किसके, वो सम ऑफ द चेंज इन इंथैल्पी कहाँ से आती है। अगर हम उसी रिएक्शन को जो ए से डी बनाए हैं उसी रिएक्शन को चाहें तो 3 स्टेप में बना सकते हैं, पहले ए से बी बनाए, बी से सी बनाए, सी से डी बनाए। तो ये जो 3 स्टेप की इंथैल्पी चेंज है वो बराबर होगी एक स्टेप के। आई बात समझे ना। अब इधर हम थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल में। अगर देखें जनरल देखें तो जैसे ए से बी दिया गया है या ए से डी दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जो है डी होगा। ओके तो ए से यहाँ पे डी बना, ये जो रिएक्शन लिखा है वो होना चाहिए वो ए से डी। ओके ए से डी, ठीक है। तो ए से डी बनने में जितना हीट निकलती है वो कितनी है, डेल्टा एच या डेल्टा RH भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को साइंटिस्ट बोलता है कि ये चाहे तो हम ए से पहले बी बनाएं, फिर उसके बाद बी से सी बनाएं, फिर सी से डी बना सकते हैं। यहाँ पे सी बना दिए और सी से डी बना दिए, ठीक है। तो अब इसके कहने का मतलब है कि जो एक स्टेप की इंथैल्पी है वो सारे स्टेप की इंथैल्पी को जोड़ के मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इस पे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।